Hello, my dear children. I hope you all are fine. So, in this lecture, I'll be teaching you chapter number 6, which is Be My Multiple, I'll Be a Factor. So, before we start with the question and answer, first let's read the key ideas for review, which is a factor of a number divides the number exactly. Okay, I'll explain all these key ideas by giving an example to you all. So, first one is, I'll explain you with an example over here. So it read as a factor of a number divides the number exactly. So for example, we'll take a number 12. Okay, I'm taking a number 12 over here, and factor is कोई भी factor is any number which can be divided with 12. ठीक है, any number which can be divided by 12. तो ऐसे कोई भी number, for example I am taking 4. ठीक है, I am taking 4 here. Okay, 4 can be divided, है ना, 4 can be divided by 12. So 4 3s are 12 you will get, and reminder, what are you getting? 0, है ना. 12 is the number which we took, and 4 is what? 4 is the factor of 12. How 4 is the factor of 12? Because आप जब 12 को divide करते हो 4 से, तो what you will get? You will get no remainder. Well, you will get 0 remainder, means no remainder. ठीक है. For example, if I am, sorry, for example, I'll just rub this. For example, if I am taking the same number, okay, I'm taking the same number which is 12, okay, and I hope you all can see this and see this. So I'm taking the same number 12, and if I'm dividing it by 5, okay, if I'm dividing it by 5, what you will get is 5 2s are 10, reminder you will get 2, है ना, reminder you will get 2. So this is the number. 5 is not the factor of 12. क्यों? Because आपको reminder मिला है यहाँ पे, remainder 2 आया है. So any number which can be divided and which can be divided exactly, that is the factor of that number. ठीक है, अगर आपका reminder 0 आता है तो मतलब वो क्या है? फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल 4 से हमने किया था, फॉर एग्जाम्पल जब हमने 4 से किया था तो हमें क्या मिला था? रिमाइंडर 0 मिला था. तो 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 12. If I'll give you one more example, if I'm giving you the example, same number I'm taking 2. I'm taking the factor 2. 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 6 12, है ना. If you minus it, you will get 0, and therefore this 2 is the factor of 12. Understood, children? 2 is the factor of 12. Why? Because जब आपने divide किया तो you got 0. You got no reminder means you got 0 reminder means you got no reminder. So जब आपका reminder 0 है तो मतलब क्या है? Divide हो रहा है. तो जब divide हो रहा है तो मतलब क्या है? कि ये factor है 12 का. ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है. ये नंबर आपके चेंज कर दिए जाएंगे. आप देखोगे कि वो डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है. हो पा रहा है तो फैक्टर है, नहीं हो पा रहा तो फैक्टर नहीं है. That's all. Okay, children? That is it. The first point I explained you, I hope you understood. So next point we will read. Next point is, a multiple of a number either equals or is greater than the number. Okay, I told you what is a factor. Now we are talking about multiple. Okay, again I'll give you example. Okay, it says a multiple of a number. Okay, a multiple of a number, for example, what we will take? We'll take the number 4. ठीक है, we'll take the number 4. So I'm taking the number 4 over here. So what it says that multiple of a number either equals or is greater than the number. Multiple is nothing but multiplication. ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? टेबल होता है. तो ये सेंटेंस का हिंदी में इतना ही सिर्फ मतलब है बच्चों कि ये कोई भी नंबर हो, जैसे 4 है या कोई भी नंबर हो, 5 6 7 1 2, एनी नंबर. सो एनी नंबर will be उनका multiple will be the number itself. ठीक है, will be the number itself या greater than. For example 4 ones are, देखो 4 ones are, you know it is 4. तो what it says, the half part of the line says a multiple of a number either equals, मतलब ये नंबर है हमारा, ये भी नंबर है हमारा, 4 ये नंबर है, ये 4 मल्टीपल है, तो 4 and 4 इक्वल है. तो दैट इज़ वाई इट सेज कि अगर हम कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल ढूंढते हैं तो आइदर इट विल बी इक्वल टू द सेम नंबर,
अदरवाइज इट विल बी ग्रेटर देन द नंबर्स. मल्टीपल क्या होता है? टेबल्स होते हैं. तो अगर आप जब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हो, फर्दर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट लाइक दिस, है ना. यू नो द टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, इतना ही लिख रही हूँ मैं. तो यू जस्ट नो फर्स्ट हाफ पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर आइदर इक्वल्स, तो मतलब फर्स्ट नंबर क्या होता है? सेम नंबर. मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल विल बी द सेम नंबर. जैसे आपको 4 का निकालना है तो 4 का मल्टीपल 4 होगा ही होगा, बिकॉज 4 के टेबल में 4 आता है. 4 1 4, है ना. एंड नेक्स्ट इज हायर देन द मल्टीपल. 4 से बड़ा ही नंबर होगा. कभी भी 4 का मल्टीपल 2 नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज 4 का मल्टीपल या तो 4 से स्टार्ट होगा एंड उसके आगे बढ़ता जाएगा, बट कभी भी उससे लेस नहीं होगा. 4 के टेबल में 3 आ सकता है बच्चों? नहीं आ सकता. 4 के टेबल में 2 आ सकता है? नहीं आ सकता. सो दैट इज़ वाई मल्टीपल क्या होता है? या तो सेम होता है, 4 and 4, दिस 4 and this 4 will be same. Any multiple of the given number will be the same number. Otherwise it can be greater than the number. ठीक है. I'll give you one more example children so that it would be easier for you all. I'm giving you one more example. Okay, so I'll give you the number 10. ठीक है. I'm giving you the number 10. तो 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? एक तो 10 खुद होगा. क्यों 10 खुद होगा? बिकॉज 10 1 ज़ा 10, है ना. 10 का टेबल कैसे स्टार्ट होता है? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20. आई एम जस्ट राइटिंग हियर लाइक दिस. 10 3 ज़ा 30. Simple examples I'm giving you so that you will understand. 10 5 ज़ा 50, then 60, है ना children. So क्या होता है? So the number, multiple of the number starts with the number itself. 10 अगर हमारा नंबर है तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 10 होगा. एंड 10 से बड़े नंबर्स होके मल्टीपल्स. मल्टीपल्स मतलब नेक्स्ट आगे के टेबल्स. 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50 एंड 10 6 ज़ा 60, है ना. मतलब मल्टीपल्स बढ़ते ही जाएंगे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 60 में रुक जाओगे आप. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है जितने मल्टीपल्स आपको पूछे उतने आपको लिखने हैं. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मल्टीपल. फैक्टर्स क्या है? डिवाइड करके देखना है. डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट इज़ द फैक्टर ऑफ द नंबर. मल्टीपल में क्या करना है? आगे आगे आपको मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल 10 था तो 10 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 10, बिकॉज 10 1 ज़ा 10 होता है. एंड देन 10 से बड़े होंगे मल्टीपल्स. ठीक है. 10 का मल्टीपल कभी भी 5 नहीं होगा बच्चों. क्यों नहीं होगा? बिकॉज 10 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, है ना. तो लोवेस्ट मल्टीपल विल बी द नंबर इटसेल्फ एंड देन higher than the number. Okay, these numbers. 10 का 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, then 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60. Okay children, so I hope you understood. I hope you might have understood what is the factor and what is the multiple, how you'll find out. That's all. Next, third point is every number is a factor of itself. ठीक है. Every number is a factor of itself. इसका भी मतलब I'll just explain you in an example. Okay. So for example, I'm taking the number 6. ठीक है. And this in the third line, the meaning is this number is a factor of 6. 6 is the factor of 6. How 6 is the factor of 6? Because अब डिवाइड कर दो 6 को. 6 से ही डिवाइड करना है बिकॉज 6 क्या है? 6 का खुद का फैक्टर है. 6 को आप डिवाइड करोगे 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर 0. रिमाइंडर 0 है मतलब 6 फैक्टर है 6 का. क्लियर. कोई भी नंबर हो, बड़े नंबर भी ले लो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांटेड टू टेक 30. ठीक है. इफ़ यू वांटेड टू टेक द नंबर 30, टेक इट. एंड 30 इज द फैक्टर ऑफ 30. 30 is the factor of 30. Why? Because 30 ones are 30. What is the remainder you will get here? 0. So that is why 30 is the factor of 30. ठीक है. आप समझ गए. So every number, कोई भी नंबर हो, 100 हो, 20 हो, 36 हो, 59 हो, कोई भी नंबर हो जो भी आपको पता है. We have n numbers and those numbers is a factor of itself because क्या है? वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं. That is all. Next point is children's 1 is a factor of every number. Okay, now 1 is a factor of every number. Again I'll explain you with an example. 1. So any number का 1 factor होता ही होता है.
How? Because for example I'll take now 59. अभी थोड़े higher numbers ले लेते हैं. ठीक है, 59. I'm taking a number 59. तो what is that line is stating that 1 इसका factor है. मतलब 1 is the factor of 59. है ना, 1 divide कर सकते हो ना आप, 59 से 1 को divide कर सकते हो आप. How? Like this. 1 5 are 5. You'll get here 0. This comes here 9. 1 9 are, space is not there, I'm writing here, and you will minus 9 by 9. 9 minus 9, you'll get 0 over here. है ना? That is all. So any number can be divided by 1. What does that mean? 1 is the factor of any number. ठीक है, 1 is the factor of any number. 59 ले लिया तो 59 का factor होगा 1. ठीक है. For example, if you want, I'll give you other example also. And for example, I am taking the number 100. I'll take the number 100. I'm taking the number 100. Okay. 1 is the factor of 100. How 1 is the factor of 100? Because 1, I can directly also write here 100 is 100. है ना, 100 is 100. You will get the remainder 0, and that is why 1 is the factor of 100. So children, ऐसा नहीं कि 1 is the factor of 100 only. It is the factor of every number. ठीक है, 1 क्या है, हर नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप, एंड हर नंबर से डिवाइड करने के बाद यू विल बी गेटिंग द रिमाइंडर 0. सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. दैट इज ऑल चिल्ड्रन. ओके, okay, we'll move on to the next line. That is every number is a multiple of itself. Again, every number is what? A multiple of itself. For example, I am taking an example of the number 6. Okay, I'll take the example of the 6. Take the example of 6. So what it states is every number is a multiple of itself. So क्या होता है, 6 क्या है, 6 के टेबल में आता है 6 1 is 6, है ना, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30. So it goes on children, है ना, टेबल आपको पता है. So that is why. So now it says कि every number is a multiple of itself. अगर मैंने 6, if I am taking the number 6, then 6 is the multiple of 6. ठीक है, आपको बोला है कि मल्टीपल फाइंड आउट करो 12 का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आपको बोला है कि मल्टीपल फाइंड आउट करो 12 का, देन 12 इज द मल्टीपल ऑफ 12 बिकॉज 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36. मतलब स्टार्ट किससे हो रहा है, नंबर 12 से ही स्टार्ट हो रहा है ना. तो कोई भी नंबर आप जब भी कोई भी नंबर लोगे तो क्या होगा, इट इज़ द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. बड़े नंबर भी ले लो. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द नंबर 100. I'm taking the number 100. So 100 is the multiple of 100 because 100 ones are 100. है ना बच्चा. So likewise every number is a multiple of itself. आप कोई भी नंबर ले लो वो उसका खुद का मल्टीपल होता ही है. लास्ट लाइन इज every number is a multiple of 1. ठीक है, every number is a multiple of 1. Again this is very simple. ओके, व्हाट इट स्टेट्स इज दैट कोई भी नंबर हो वो क्या है, 1 का मल्टीपल होता ही है. फॉर एग्जाम्पल हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 into 1 is 1. इफ आई एम टेकिंग 2 है हमारा नंबर, तो 1 into 2, 1 का मल्टीपल है ना 2, बिकॉज 2 के टेबल में 1 आता है, सॉरी 1 के टेबल में 2 आता है. तो मतलब दैट इज वाई 1 इज अ एवरी नंबर, कोई भी नंबर. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक हियर 6 नाउ. ठीक है, I'll take the number 6 now. You can see 6 is a multiple of 1, है ना. And if I am taking a number higher than this, for example, if I am taking the number 20, 1 into 20 is a 20, है ना. So every number, कोई भी नंबर 20 लो या 250 लो, 250 into 1 250 होगा. सो डैट इज़ वाई चिल्ड्रंस एवरी नंबर, आप थाउजेंड्स में लो, लैक्स में लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 1 lakh, आई एम टेकिंग अ नंबर 1 lakh. ठीक है चिल्ड्रंस, आई हैव टेकन द नंबर 1 lakh. 1 lakh into 1 you will get 1 lakh. That's all.
So that is why it states that 1 क्या है हमारा बच्चों, 1 is multiple of every number. n numbers आपको पता है, काफ़ी सारे numbers पता है, तो n क्या है, सॉरी 1 क्या है, हर किसी के number के साथ multiple होता है. That is all, children. So that was the key ideas for review. It was very important to tell you in detail. So that is why I gave you one example. So let's start with the questions. We'll see how much questions we can finish in this lecture. First one is write first 4 multiples of the following. ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करना है. सो मल्टीपल्स मतलब आपको पता है, मैंने बता दिया सिंपल लैंग्वेज में, आप समझो मल्टीपल्स मतलब उस नंबर का टेबल. ठीक है, अगर उन्होंने बोला है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बोला है, तो आपको क्या करना है, वो नंबर का 4 तक टेबल लिख देना है आपको. फॉर एग्जाम्पल 18 तो दिया हुआ है, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90. उन्होंने कितने बोले थे, 4 मल्टीपल्स. आपने लिख दिया 1 2 3 4, 4 मल्टीपल्स आपने लिख दिए, आपका हो गया. अब 4 मल्टीपल्स मतलब इतना नहीं है कि आपको 18 4 ज़ा तक लिखना है. 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इस नंबर के आगे के 4 मल्टीपल नंबर्स आपको लिखने हैं. तो 18 के आगे और 4 आपको नंबर्स लिखने हैं, एंड वो 18 के टेबल ही होने चाहिए. 18 2 36, 3 54, 4 72, 5 90. ओके, नेक्स्ट इज 20. द नंबर 20 के आगे के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो आगे के 4 मतलब 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100. मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर लो. आई टोल्ड यू टू memorize and learn the tables till 20. ठीक है childrens. Next is 25. ठीक है 25. So if you don't know 20 तक तो table you have to learn childrens. Okay, if you haven't learned it yet, you need to learn that till 20. It is very important. Next is 25. For example 25 है, 25 का table आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे, I hope you know about it, but still I'll just tell you one. फॉर एग्जाम्पल 25 का है कि आगे के आपको टेबल्स लिखने हैं, तो आप क्या कैसे कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, छोटे बच्चे भी करते हैं. 25 2 ज़ा 5 2 ज़ा, हाउ यूल डू इट, 5 2 ज़ा 10. सो 10th प्लेस का नंबर कैरी करोगे, 1st प्लेस का नंबर लिख दोगे, देन 2 2 ज़ा 4, एंड ये कैरी किया हुआ ऐड कर दोगे, 4 + 1 5. तो 25 2 ज़ा व्हाट इज़ इट 50. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर में यहाँ पे आपने 50 लिख दिया. एंड देन 25 3 ज़ा, वो भी आप ऐसे ही यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 3, 5 3 ज़ा 15, 10th प्लेस की वैल्यू ऊपर, 5 नीचे, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1 75. तो 25 3 ज़ा 75. नेक्स्ट नंबर आपने यहाँ पे 75 लिख दिया. दैट इज़ हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. अगर बड़े नंबर्स है तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, द वे आई शोड यू. अदरवाइज यू कैन जस्ट, इफ यू टिल 20 इट इज़ देयर, देन you know, you learn, most of you know it and most of will learn it, I know. So you can just write down the tables as asked. Okay, likewise 29 का भी करना है. 29 2 ज़ा 58, 29 3 ज़ा 87, 29 4 ज़ा 116, 29 5 ज़ा 145. तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है again. That's all childrens. Next question is question number 2, that is write the next 3 multiples of. So what it here states is childrens, you have to write 3 multiples. 3 multiples means आगे के 3 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर अ पैटर्न. यहाँ पे आपको हिंट्स दिए हैं, आपको नंबर नहीं बताए हैं, बट आपको यहाँ पे हिंट्स दिए हैं. तो मतलब यहाँ पे 5 है नंबर, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15, देन 20. देन व्हाट डज इट मीन, इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, है ना. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35. हमने यहाँ पे बंद क्यों किया, बिकॉज उन्होंने बोला 3 मल्टीपल्स लिखने हैं आगे के, 1 2 एंड 3 नंबर्स हो गए, तो बस करो. आपको भले ही 5 10 ज़ा 50 तक आता है, बट आपको पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे, है ना चिल्ड्रन. सो दैट इज़ वाई जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स. नेक्स्ट इज 15. यू कैन सी द पैटर्न ऑफ 15 टेबल हियर. 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, देन 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105. Like this you have to write the 3 next multiples of the first number. ये 9 का टेबल है, आगे के 3 मल्टीपल्स इसके आगे के आपने लिख दिए. That is all children. So these both questions were regarding multiples. So that is done. We'll move on to our question number 3, that is the greatest factor of 35. So what is the greatest factor? Greatest factor of 35 will be the number itself.
आपको हिंट्स में मैंने आपको हिंट्स में मैंने पढ़ाया था, ग्रेटेस्ट फैक्टर विल बी द नंबर इटसेल्फ। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? 35 का 35 ही होगा, है ना। छोटा पूछा है तो यू हैव टू सी डिवाइड करके कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट यू हैव टू सी। बट ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा है, 35 का ग्रेटेस्ट फैक्टर विल बी 35 इटसेल्फ। ओके चिल्ड्रन, द नंबर इटसेल्फ विल बी द ग्रेटेस्ट फैक्टर। एंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 16, स्मॉलेस्ट फैक्टर वो भी आपके हिंट्स में था। यू कैन सी 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एंड 1 से छोटा तो कोई नंबर नहीं होता ना बच्चों। If we, in terms of calculation, I'm talking about, so 1 is a factor of every number, so that is why the smallest factor, biggest factor क्या होता है, आप ये लॉजिक लगा लो, बिगेस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा है तो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर आपको दिया है 35 तो 35 ग्रेटेस्ट होगा, 55 है तो 55 ग्रेटेस्ट होगा, 100 है तो 100 ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा, बट स्मॉलेस्ट फैक्टर कभी भी 1 ही होगा किसी भी नंबर का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज the smallest non-zero multiple of 15 is multiple of 15, तो multiple of 15 and smallest multiple of 15, तो multiple means खुद के नंबर से स्टार्ट होते हैं ना ये, तो 15 1 से 15 ये स्मॉलेस्ट है। इसके आगे क्या होगा, हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, यहाँ पे सेकेंड लाइन में, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर आइदर इक्वल्स और इज ग्रेटर देन द नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, द सेम इक्वल नंबर होगा, तो दैट इज वाई स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 15 विल बी 15। ठीक है, 15 से ही स्टार्ट होता है ना, 15 का टेबल, 15 1 से 15, लाइक दैट। नेक्स्ट इज डी, write the multiples of 6 which are greater than 20 and less than 60. So what does that mean? Multiples of 6, multiples of 6 से it is very clear that what you have to write is, you have to write table of 6. ठीक है, you have to write the table of 6, and but one more condition they are saying. Okay, what we will do, see 6 ka table they are asking us to write, so 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, then 30, I'm just writing directly, 36, 24, then 24, after 24 it comes 30, after 30 it comes 36, after 36 it comes 42, after 42 it comes 48, after 48 it comes 54, and then it comes 60, है ना। ये हो गया 6 का टेबल, I've just written like that in commas, so this is the table of 6. Okay, so multiples of 6 are these, इसके आगे भी है 66, and then further it goes, so but they are saying which are greater than 20 and less than 60, so which is greater than 20, तो greater 6, तो हमें 6 नहीं लिखना, 12 नहीं लिखना, 18 नहीं लिखना, बिकॉज 20 से बड़े नंबर लिखना है एंड 60 से छोटे नंबर, तो हमें क्या करना है, ये सारे नंबर स्किप करने हैं। 18 12 6 ये क्या है, छोटे नंबर्स है ना, हमारे 20 से लेस है, तो इसे हमें वो नहीं लिखना, एंड उन्होंने बोला है 60 से कम, तो हमें 60 भी नहीं लिखना, we don't need to write 60 also. So these numbers which are left, 24 30 36 42 48 54, we have to write all these number we need to write. Okay children, so that is all we have written here, 24 30 36 42 48 54. Understood? Next is children, 4 multiples of 21 are, again आगे मल्टीपल्स लिखने हैं आपको, मतलब टेबल लिखना है, किसका लिखना है, 21 का, तो 21 का टेबल, इफ़ यू नो वेरी गुड, इफ़ यू डोंट नो you can just find it out. How you will find it out? By simple multiplication. You can just find it out. 21 2s ऐसे multiply कर लेना जल्दी से. 42 is the answer, so you'll write 42. 21 3s you'll just multiply fast. 63 is the answer. Like that you have to just multiply 4 times and write. Why 4 times? Because उन्होंने बोला है 4 multiples of 21. Okay children, so that is all. So question number 4 we cancel children for you all. Question number 4 isn't important, we cancel. You can just tick mark and write the write cancelled over there. Let's move on to our question number 5. And question number 5 is, write 36 as a product of 2 factors. Okay, this is very simple to explain you.
सो जस्ट लिसन केयरफुली, उन्होंने क्या बोला है, 36 शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. टू फैक्टर्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन. आप दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है दैट इज प्रोडक्ट. ठीक है, कोई भी दो नंबर हो, ये दो नंबर है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर जो आया 40 वो आपका प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट 36 आना चाहिए. तो आपको ऐसे दो नंबर्स हर बार मल्टीप्लाई करने हैं जिसका प्रोडक्ट या फिर जिसका आंसर 36 विल कम. Okay children, so first we will start with the number 2. ठीक है, first we will start with the number 2. तो 30, why we have started with the number 2, because you can see ये 36 है, it is an even number, है ना, 36 है, it is an even number. तो even number क्या है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो आपको पता है. तो that is why हमने स्टार्ट किया 2 से. तो आप क्या करोगे, 2 के टेबल में 36 कब जाता है, 2 18 जा 36, है ना, 2 18 जा 36. 2 18 जा 36 होता है तो 18 2 जा भी 36 होगा. यू नो दिस लॉजिक, है ना. जैसे 2 3 जा 6 होता है तो 3 2 जा भी 6 ही होगा, है ना चिल्ड्रंस. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. एनी नंबर vice versa, if you multiply you will get the same product. Okay, for example, I'm giving you the number 6 into 2, it gives you 12, है ना. If you multiply 2 into 6 then also you will get 12 only, like 2 6 are 12, that is all. Understood. तो आप वाइस वर्सा कैसे भी आप मल्टीप्लाई करो, बट नंबर्स क्या होंगे, सेम नंबर्स हैं तो आपको क्या होगा, प्रोडक्ट सेम ही आएगा. सो लाइक वाइज 2 इंटू 18 ज़ा 36, सो दैट इज़ वाई 18 इंटू 2 ऑल्सो विल बी 36. तो आप क्या करना है, एक आपको मिल गया तो उसका उल्टा भी आप लिख दोगे तो आपका 2 बॉक्स फिल हो जाएगा. दिस इज़ द टेक्निक हियर. 2 18 ज़ा 36, सो दैट इज़ वाई 18 इंटू 2 विल बी ऑल्सो 36. नेक्स्ट 3 के टेबल में 36 आता है क्या, देखो, तो 3 12s are 36, so 12 3s are also will be 36. You know that, I just explained you how. नेक्स्ट देखो आप 4 के टेबल में 36 आता है क्या, तो 4 9s are 36 होता है, तो 9 4s अभी 36 होगा. 4 इंटू 9 या 9 इंटू 4, आंसर विल बी सेम, है ना. टेबल दूसरा हो गया एंड योर होल, बस आपने क्या किया है, 3 ही नंबर फाइंड आउट किए. 2 का फाइंड आउट किया, 3 का फाइंड आउट किया एंड 4 का फाइंड आउट किया. बाकी इसको ऑपोजिट कर दिया और आपका टेबल भी फुल हो गया. आंसर तो बहुत इजीली आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो दैट इज़ द टेक्निक और लॉजिक हियर टू सॉल्व द आंसर फास्टर. सो दैट इज़ ऑल. सो हियर इट इज़ द सेम क्वेश्चन. 40 शुड बी योर प्रोडक्ट, मीन्स multiplication of any two numbers should be your 40. The answer should be 40. So here children will start with 2 again. Why? Because 40 is also an even number, so that is why 2 will be divisible. सो 2 के टेबल में 40 कब आता है, 2 20s are 40, 2 20s are 40 है तो 22s भी 40 होगा. नेक्स्ट 2 के बाद 3 के टेबल में 40 नहीं जाता, यू कैन डिवाइड इट एंड सी, 3 के टेबल में 40 नहीं जाएगा. आई मीन 40 से डिवाइड नहीं कर पाओगे आप 3 को, रिमाइंडर विल बी देयर विल बी नो ज़ीरो रिमाइंडर, सो दैट इज़ वाई 3 के टेबल में नहीं. एंड नेक्स्ट इज़ 4, तो 4 10s are 40 होता है तो 10 4s भी 40 होगा. सो नेक्स्ट 5 8s are 40, सो येस 8 इंटू 5 विल ऑल्सो बी 40. Okay, that is it children. So next question is question number 7, that is complete the missing entries in the following factor tree. Here also you have to apply little just not this is also a very simple question. Every hint is given, so these two is given to you. टू सर्कल्स को आपको टू सर्कल्स में जो नंबर है वो आपको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखना है. ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट मल्टीप्लाई एनी नंबर. हाँ, ये डायग्राम है, ये अब दिख रहे हो जॉइंट है, तो आपको ये डायग्राम को ध्यान से देखना है इस ट्री को एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज देयर, सो देर आर 2 and 2, सो 2 2s are what is it children, 2 2s क्या होता है, 4 होता है. सो यू हैव रिटन 4. अब 4 के साइड में कौन सा नंबर है, 2, तो 4 2s क्या होता है, 8 होता है. तो ये फैक्टर ट्री आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट इज दिस नंबर, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये दो सर्कल्स खाली हैं, तो आपको ऐसा दो नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आता है आंसर, है ना. तो आप स्टार्ट करो. 2 के टेबल में से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, नो. 3 के टेबल में करोगे तो आएगा, तो 3 इंटू 3 सा 9 होता है, तो 3 3 सा लिख दिया आपने जिसका मल्टीपल 9 आया. नेक्स्ट अभी 9 इंटू 8,
ये आपने सॉल्व कर दिया था, यहाँ पे नीचे से आपको सॉल्व करना है बच्चों, नीचे से जाओगे तभी आपको ऊपर का प्रोडक्ट मिलेगा। तो नाउ नेक्स्ट इज इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 9 8 व्हाट इज इट 72। ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द ट्री। नेक्स्ट बी इज 3 and 7, so 3 7s are 27. ठीक है, 27 you have written, 27 into 2. Again, if you don't know the table of 27, no problem, you can just multiply like this, like I have done here. 27 into 2, it will give you the answer 54. ठीक है चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में भी क्या था, 2 and 2 दिया हुआ है नंबर, 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4 होता है। ये वाला साइड हो गया, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है अभी। 6 प्रोडक्ट है, कौन से दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। आप स्टार्ट करो हमेशा छोटे नंबर से। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू सॉल्व इट विद द बिगर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज ऑलवेज ईजी। तो यू नो द टेबल ऑफ 2, सो यू नो द टेबल ऑफ 2, 2 के टेबल में 6 कब जाता है, 2 3 6, सो यू हैव रिटन हियर 6, already it is there 6, so 4 is the answer, you find it out already, 2 2s are 4, and then 6 4s are 24। ठीक है, that is you have to solve the answer। next is D part। D part में 3 and 5 already given है, तो 3 5s are is 15, एंड यहाँ पे 4 है आंसर। तो 4 आंसर आने के लिए किन दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 2s will be 4, and then you have got 15 here, तो 15 into 4s are 60। Done children। So it is very simple, you just need to see, you just need to find out what is the product, what will be the product, and the product when it comes you just have to multiply and find out the final outcome। Next is E part। E part is 36 is the product, and no, 9 is the number given to you। okay, only the number 9 and the number 36 is given to you। so 9 आने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 आएगा। तो 3 3s are 9, you got the number 9, and again you need to do, and now you have to find out this number first in order to find out this। why? because already एक नंबर आपको पता है, प्रोडक्ट भी आपको पता है। तो 36 डिवाइडेड बाय 9 करो, 9 के टेबल में 36 कब आता है, यू नो दैट 9 4 इज 36, है ना। ना यू डोंट हैव दिस नंबर, यू हैव द प्रोडक्ट, यू हैव वन नंबर। सो आप यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट ऐसे कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे जब आपका आएगा 36। 9 यहाँ पे 1 लिखते तो 9 1 सा 9 होता है, यहाँ पे तो 36 लिखा है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर लिखना है जिसका प्रोडक्ट 36 निकले। तो 9 into 4 is 36, एंड नाउ इट इज़ 4 हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 4 आता है। सो इट इज़ 2 2s are 4, and this is again same thing। you have got 48, or the main product is given to you, then 12 is given, 4 is given। so 12, for 12 what you have to do, you have to find out find out the product of 12, any number। I always prefer to ask you to think from the smallest number because it is easier and you can just find out easily without wasting your time। so it is 12 here, to see 2 के टेबल में 12 कब जाता है, 2 6 are 12। okay, then this is 6, and 6 के table, you know, you need to multiply two numbers to in order to get the number 6, so you can just multiply 2। as I said, start with the smallest number, 2 से start करो, 2 के table में 6 कब आता है, 2 3s are 6। so this T diagram left side is over। you have got 4 already, 4 will be the product of 2 into 2, 2 2s are 4। so it is very simple to solve like that। okay childrens, okay, so last questions for the day is question number 8, that is what I'm teaching you last in this lecture, and further questions we'll do it in our next lecture। so question number 8 is find as many common factors of the given number as you can। okay, this is very simple questions children, so I'll just show you how to solve it out। so you need to find out common factors। now you learned about the factors, you learned about the multiples, you learned about the 4 multiples or 5 multiples or many more multiples, and you also learned how to do the factors। but here they are asking about the common factors। तो आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, नंबर दिया है दो नंबर, ठीक है, you have been provided with two numbers, what is it, 24 and 18, है ना। A is 24 and 18 आपको नंबर दिया। so what you have to do is children, you have to find out the factor of 24 and the factor of 18। so how you'll find out, very simple, I'll give you one short technique so that in that technique टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, बहुत जल्दी फाइंड आउट भी हो जाता है। तो सबसे पहले you'll find out the factor of 24।
24 मतलब किस किस के टेबल में 24 आता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल. व्हाट यू विल डू इज़ 1 के टेबल में तो 24 आता ही है, हर किसी के टेबल में 1 विल बी द फैक्टर. वो हमने की आइडियाज़ में पढ़ा था. तो 1 के टेबल 1 24s. I'll write 24. Wait, I'll rub this. We don't have much space here, so I'll start from here. 24. Okay, so we are finding out the factors of 24. So 1 के टेबल में जाता है 24. तो 1 24s. Okay, you will write here 24 in the end. 1 24s are 24 है ना. You know that 1 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे तो 24 मिलता है. और किसके टेबल में 24 आता है? 2 के टेबल में भी जाएगा, बिकॉज 24 इज़ एन इवन नंबर. सो 2 के टेबल में 24 कब जाएगा? 2 12s 24 है ना. 2 के टेबल में 2 12s 24 होता है. एंड देन वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस इज चिल्ड्रंस, बिकॉज आपका सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे. ओके, 1 24 जा जाता है तो 1 भी फैक्टर होगा 24 का, एंड 24 भी फैक्टर होगा 24 का. ओके, वेट, every number, first I'll just show you how, if these 2 points are important. Okay, this one is a factor of every number and every number is a factor of itself. तो ये क्या होता है? 1 and the number itself, ये हमारे फैक्टर्स होंगे ही होंगे. तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपली 24 is equals to, okay, 24 is equals to 1. 1 is the factor of 24, as I just showed you, and the number itself. तो 124 is a 124 is a 24. तो आपने 1 भी लिख लिया, 24 भी आ गया है ना. तो आपने 1 एकदम लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, 24 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख देना 24. एंड देन 2 के टेबल में भी 24 जाता है. 2 के टेबल में कब जाता है? 2 12s 24 है ना चिल्ड्रंस. 2 12s 24. तो 2 भी हो गया यहाँ पे कवर, 12 भी हो गया यहाँ पे कवर. 3 के टेबल में 24 जाता है. यस, 3 8s 24. 3 8s 24. तो 3 यहाँ पे लिख दिया, 8 यहाँ पे लिख दिया. 4 के टेबल में 24 जाता है. यस, 4 4 6 24 है ना. तो अभी तो 4 हो गया. तो नेक्स्ट, so here children's, what is the good thing here if you just solve it like this, because आपने क्या कर लिया है? दोनों नंबर्स ले लिए हैं. जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया और जिसको मल्टीप्लाई किया, वो सारे नंबर्स लिख दिए हैं. जैसे 1 24 2 12 3 8 24 4 6 24. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टेकिंग just like that, okay, 24. Okay, I'm just telling you the lengthiest part. जो लेंथीएस्ट पार्ट क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. आई शो यू. जैसे 1 के टेबल में 24 जाता है तो आप 1 लिखोगे. फिर आप देखोगे 2 के टेबल में जाता है तो आप लिखोगे 2. देन यू विल सी 3 के टेबल में जाता है कि नहीं. फिर देन यू विल सी 4 का टेबल याद करना पड़ेगा, 4. देन 5 के टेबल में नहीं जाता. देन 6 के टेबल में जाता है. देन 8 के टेबल में जाता है कि नहीं. देन यू हैव टू सी 9 के टेबल में जाता है कि नहीं. देन 10, देन 12. तो ऐसे आपको फाइंड आउट करता रहना पड़ेगा. 12 के बाद व्हाट, कोई 13 में जाता है कि नहीं, 24 में जाता है. सो लाइक दैट यू नीड टू फाइंड इट आउट. बट इफ़ यू जस्ट राइट 1 के टेबल में कब जाता है? 24 तो 1 भी लिखा आपने, 24 भी लिखा आपने साथ में. 2 के टेबल में भी जाता है, 2 भी लिखा आपने. 2 के टेबल में कब जाता है? 12 टाइम्स से जाता है, तो 2 भी लिखा आपने, 12 भी लिख दिया. एंड देन 3 के टेबल में जाता है, तो 3 के टेबल में कब जाता है? 8 3 8 तो 3 भी लिखना है, 8 भी लिखना है आपको. तो देन व्हाट यू विल डू, यू वोंट मिस एनी नंबर इन बिटवीन. बीच में कोई भी नंबर छूटेंगे नहीं आपके. ठीक है बच्चों. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट बोथ द नंबर्स सो दैट यू वोंट मिस एनी नंबर. सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 24. Okay, 1 2 3 4 6 8 12 24. Okay children, so next what you have to find out is, next is 18 number. ठीक है, 18 again I'll say you 1 18 18 है ना. देन 2 के टेबल में भी जाएगा. 2 के टेबल में कब जाता है? 2 9 18
दैट इज इट। 3 के टेबल में भी जाता है, 3 6 18। 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है 6, एंड 7 के टेबल में नहीं जाता है, 9 ऑलरेडी लिख चुका है, एंड 18 भी लिख चुका है। सो दैट इज ऑल। सो 18 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 6 9 18। ओके, एंड देन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स, अब इफ़ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 2 नंबर्स नो चिल्ड्रन, सो यू नीड टू सी कौन से ये नंबर सिमिलर हैं। For example, these two, you can see this page and you can see this screen. Okay, so आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा similar है. For example, I've just solved it here, so I'll explain you here now. Okay, so now like this I have written. ठीक है, 24 का 1 2 3 4 6 8, I just showed you how I have written the numbers. So ऐसे यहाँ पे आपने लिखना है। अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या है, यू जस्ट नीड टू सर्कल इट। 1 एंड 1 दोनों में है तो आपने सर्कल बना देना है, 2 एंड 2 दोनों में है, यू नीड टू सर्कल इट, 3 एंड 3 दोनों में, यू नीड टू सर्कल इट। 4 यहाँ पे है, बट 18 में 4 है क्या नंबर, नहीं, 18 में 4 हमने लिखा ही नहीं है, तो 4 को छोड़ दो। देन नेक्स्ट इज 6, 6 इज ऑल्सो इन 18, तो 6 को भी आप सर्कल कर दो। एंड 8 12 24, 8 12 24 इज इन हियर, नहीं है। दोनों ऊपर 12 का जो फैक्टर आया, 18 का जो फैक्टर आया, इन दोनों में जो हमने सेम है उसको सर्कल करना है, एंड दैट इज द कॉमन फैक्टर। अब आपने सर्कल किसको किया, 1 को किया, तो यू विल राइट कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 6। जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स जो कॉमन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। Okay children, that is all. So I'll explain 2 more questions to you, and 3 you can just see and understand. I'll explain you the C part. Okay, C is 10 and 24. Again 10 and 24, so I'll just show you fastly. I'm explaining you 2-3 questions, similar questions, because you will understand it. So first one is 10. So 10 is equals to, yes, 1 के टेबल में 10 जाता है, yes, 1 10s are 10. 2 के टेबल में 10 जाता है, यस, 2 5s are 10. 3 के टेबल में तो नहीं जाता, 4 के टेबल में भी नहीं जाता, 5 ऑलरेडी हमने लिख चुका है, एंड देन 10 भी हमने लिख चुका है। सो 1 2 5 एंड 10 इज द फैक्टर ऑफ 10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज विच नंबर, 24। 24 इन द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली वी फाइंड इट आउट, है ना। 24 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। 24 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। एंड 10 एंड 24 में कौन से कॉमन है, 1 को हमने सर्कल किया, 1 कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू में लिख दिया, एंड 2, 10 में भी 2 आता है, 24 में भी 2 आता है, सो या वी हैव रिटन हियर 2 एज वेल। Okay children, so 1 and 2 are the only common factors in 10 and 14. Okay, I'll explain you the common factors of 12 and 24 तो already we have done. So I'll explain you the F part. F part is 25 and 40. So 25 and 40 I'll show you. 25, okay, how you'll find out for the 25. First is 1. 1 के टेबल में कब आता है 25, 1 25s are 25. 2 के टेबल में नहीं जाता है, 3 के टेबल में भी 25 नहीं है, 4 के टेबल में भी 25 नहीं है। नेक्स्ट इज तो 5 के टेबल में कब जाता है, 5 5 ही 25 होता है ना। तो यू डोंट नीड टू राइट 5 अगेन, वी डोंट नीड टू राइट 5 अगेन, वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, सो वी वोंट राइट 5 हियर। सो 1 5 एंड 25 इज द कॉमन फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ 25. नेक्स्ट इज 40. नेक्स्ट इज द नंबर 40. तो 40 we will just find it out. 40 is, how we will find out, is equals to 1 40 is a 40. 2 के टेबल में 40 कब आता है, 2 20 is a 40. 3 के टेबल में 40 नहीं जाता है, 4 10s are 40. Then 5 is also there. Okay, 5 8s are 40, है ना, 5 8s are 40. That is all. So factors of 40 is 1 2 4 5 8 10 20 40. That is all. So what we will do is, we have written all the factors here.
1 5 25 and here 1 2 4 5 8 10 20 40 and common factors क्या है दोनों में 1 and 1 common है and 5 and 5 common है तो 1 and 5 is the common factor of 25 and 40. That is all. So here 24 we have already explained you. Here and here I explained you. And then 12 is also again I explained you. That is why I didn't explain E part. D it is also same. 18 का आप देखोगे कौन से टेबल में आता है, 30 आप देखोगे कौन से टेबल में आता है, and then you will just find out the common factors among them. Okay children, so that is all for today. That is all, that is how you have to find out the common factors. टेबल्स आपको लिख देने हैं, दोनों टेबल्स लिखोगे कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट से राइट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, so that you won't miss any number in between. Okay children, so that is all for today. I hope you understood, and for your homework I didn't explain this one है ना, 18 and 30 I didn't explain you purposely. So this is your homework, 18 and 30 question. Do it on your own, check this answer and send it on WhatsApp. Okay, and if you have any doubts you can also ask me. So that is all for today. I hope you understood. Take care of yourself, and in our next lecture we'll start the next questions. Take care.